मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती या किसी भी आदमी से, वो एक हमारे अभियुक्त में से हैं जो सुशांत के संबंध में उनके पिता ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें जो अन्य लोग अभियुक्त बनाए हैं 6, उसमें रिया चक्रवर्ती हैं, प्रमुख अभियुक्त हैं। तो हमको कोई इस बात से न कोई खुशी है न कोई गम है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उन लोगों से भी नहीं है जिनको अभियुक्त बनाया गया है। लेकिन हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है, इस पूरे देश की संवेदना है। पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ न कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी ये हुई होगी। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, but I can tell you कि I am not very excited or not, I don't have any reason to be happy or unhappy. खुश और ना खुश होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है। I only want that truth must come out कि what is the mystery behind this Sushant case, that mystery has to be unfolded. वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम है। सीबीआई की जांच एनसीबी की जांच से जुड़ी हुई नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। जैसे सुशांत की केस करते हैं, बात करते हैं, मामले की बात करते हैं, तो दिशा सालियन के मामले की बात क्यों हो रही है? सीबीआई उसकी भी जांच क्यों कर रही है? हमने न्यूज में देखा है। तो सीबीआई वो मामले की जांच कर रही है, सीबीआई दिशा सालियन के मामले की भी जांच कर रही है, और उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस में है, उस पर सीबीआई काम कर रही होगी, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए, क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना। But the way they were trying to divert the case, Riya and her family were trying to, and her friends. देखो, I don't want to make any comment on this. My point is कि now Mumbai police was not, मतलब the general perception is that Mumbai police was not fair in its investigation, and Bihar police was not allowed to carry out investigation. They created hurdle, and you know the whole story how they behaved with Bihar police. So I don't have to say anything about this. My only thing is that was the only option left to the court also. Bihar police couldn't do it because Mumbai police didn't want that Bihar police should handle this case, investigate this case, and Mumbai police has lost its faith, reliability. It was not doing anything. So the only option was that case should have been investigated by CBI, and Honorable Supreme Court already has given its verdict, and by order of Honorable Supreme Court, case has been handed over to CBI. So there should not be, I shouldn't make any comment. CBI is working, its style is different, it's working in a very professional manner. So truth has to come out. And Riya Chakravarti, about whom you are talking, now Riya Chakravarti is totally exposed in the sense that she had connection with drug peddlers. That has been established. This is why she has been arrested. But she said that she was हैं और भी बड़े नाम हो सकते हैं। देखो, it's very difficult to presume anything, and one should not presume anything because all professional investigating agencies are now looking into this matter. So it's not wise to presume anything, but gradually things are happening. Now people are very excited to know what further, and your question is also very right. You are also very excited to know what in future and who is going to be arrested in future. So I shouldn't make any comment on this, but I am telling you now this mystery will be unfolded by CBI also, and truth will certainly come out, and people responsible behind this Sushant death. बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। तो हम उस पर क्या कमेंट करें? एनसीबी कह रही है तो ड्रग का ऐसा धंधा है जिसमें बड़े बड़े लोग हैं। ये तो पूरा, छोटे लोग ड्रग का धंधा छोटे स्तर पर करते हैं, और बड़े स्तर पर जो ड्रग का धंधा होता है, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं हम, उसमें तो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो जो लोग इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे। ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है, ऑफिशियली कंगना रनौत को अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप ही से हम सुन रहे हैं। आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हु हैज बीन अरेस्टेड, हु हैज नॉट बीन अरेस्टेड, बट दिस इज द इन्फॉर्मेशन व्हिच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द मीडिया ओनली, that Riya Chakravarti is arrested by NCB in drug peddling, drug case. So
एनसीबी के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, फाइन। दिस मच एनसीबी मस्ट हैव फाउंड सम एविडेंस अगेंस्ट हर। उसके खिलाफ कुछ एविडेंस मिला होगा तब तो अरेस्ट किया गया है। सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि आपने एक बार बस औकात की बात की थी तो इतना हंगामा मचा था, उसी पार्टी के देखिए, औकात का मतलब होता है स्ट्रेचर। तो मैंने कहा था, आई डिडंट वांट टू हर्ट हर और एनीबडी। माय इंटेंशन इज नॉट, मेरा संस्कार ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुखी करूं। माय पर्पस वाज नॉट टू हर्ट एनीबडी, टू ह्यूमिलिएट एनीबडी। इट वाज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कि स्ट्रेचर उनका नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करें। उसको हमारे यहां औकात बोलते हैं भोजपुरी में। उसका निगेटिव सेंस ले लिया गया, निगेटिव अर्थ ले लिया गया, मीडिया पर ट्रोल किया गया। मैंने उसी समय कहा कि भाई, माय इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट और ह्यूमिलिएट एनीबडी। तो हमारा ये पर्पस ही नहीं था। आई हैव नेवर डन दिस इन माय लाइफ। आई हैव नेवर हर्ट और ह्यूमिलिएटेड एनीबडी इन लाइफ। वही नेता जो आप पे सवाल खड़े कर रहे थे, वो एक लड़की को हरामखोर बोलते हैं, नॉटी बोलते हैं, वही संजय राउत। देखिए, सबका अपना अपना संस्कार है। हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस? आई डोंट हैव ऑथोरिटी एंड आई डोंट हैव दिस इज authority to comment on any political person. That is not my business. कि वो किस पर क्या बोलते हैं तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, मेरे खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने एक महिला के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने बिहार पुलिस के खिलाफ बहुत ही अशोभनीय बात कही। मैंने कभी कोई प्रतिक्रिया दी? मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगा? वो बहुत बड़े हैं, उनका स्ट्रेचर, उनकी औकात हमसे बहुत बड़ी है। हम उन पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? कहीं ना कहीं बिहार पुलिस ने जो एफआईआर किया, इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद ही कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आई। नहीं, आप बताइए कि दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन विच डेट? डू यू रिमेंबर? ऑन 14th of June. And after 14th of June, what happened? Till 20th, everything was, finished, silent. Mumbai print media, electronic media, Sushant was out of news after 20th. Within 1 week, everything, was settled. Yes, sir. So, whole problem started when I registered a case here in Patna. After registration of case in Patna, on 25th, my team was, 4 members team was dispatched for Mumbai for further investigation on 27th. Then the whole hangama started. Why Bihar police registered case? Why 4 members team of police officer came to Mumbai for further investigation? Bihar police don't have right to register a case. Bihar police don't have right to investigate the case. It is totally illegal. Lot of TV debates are going on. Expert of law, advocates, retired judges, they are participating in the debate, and most of them are in favor of Mumbai police only. Bihar Even police. Bollywood was unhappy with you, sir. Forget about Bollywood. I don't know about Bollywood anything because I never watch movie. I have nothing to do with Bollywood. And who is happy, who is unhappy? I am not doing anything to make somebody happy or unhappy. I am doing my duty. Whatever is duty, I am doing my duty, lawful duty. I am not doing anything to make somebody happy or somebody unhappy. That is not my business. I don't bother who is happy, who is unhappy. लेकिन सर, जो बिहार के मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे थे, आपके कार्य पे सवाल उठा रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बिहार इलेक्शन से, क्या सबको जवाब मिल गया आपको लगता है? I have taken, now it has been given, verdict has been given, Honorable Supreme Court, that whatever I did was right, was legal, was constitutional. I didn't do anything out of, jurisdiction. So registration of FIR was legal. My next action, I dispatched the team to Mumbai police, Mumbai for further investigation. That is also not illegal. And the Bihar government referred the case to the CBI and through central government. That is also not illegal. So that has been held by Honorable Supreme Court. Why to debate on this? इस पर क्यों बहस करनी है? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिहार पुलिस ने जो किया कुछ भी गलत नहीं किया, केस करना भी गलत नहीं, टीम भेजना भी गलत नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना भी गलत नहीं, सीबीआई को केस रिफर करना भी गलत नहीं, तो उस पर अब हमको क्या बोलना है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कौन है?